करेंटली इतनी हायरिंग फ्रीज चल रही है कि देयर आर हार्डली जॉब्स इन द मार्केट एंड अगर आप कहीं ना कहीं मीडियोकर हो तो आपको जॉब नहीं लगने वाली। आई स्टिल रिमेंबर मेरे बैच में मैं अकेला बंदा था जिसका 30 LPA का प्लेसमेंट, तो ही वो जो लिमिटेड ओपनिंग अभी आने वाली है यू विल बी एबल टू ग्रैब इट। ऐसा कंडीशन ना हो कि मिस्टेक्स मैंने करी अपने कॉलेज टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करो। एंड इस वजह से मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने करी थी एंड मैं जेन्युइनली नहीं चाहता हूँ कि आप करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये 21-22 का टाइम देख लिया जहाँ पे मतलब बूम थी, लाइक टेक की बूम हुई थी एंड सबको बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही थी। एंड फिर आया ये प्लेऑफ्स एंड फिर अभी करेंटली इतनी हायरिंग फ्रीज चल रही है कि देयर आर हार्डली जॉब्स इन द मार्केट। तो आई फर्मली बिलीव कि वी आर बैक इन द 1920 एरा जहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे हो तो ही आपको जॉब लगेगी एंड अगर आप कहीं ना कहीं मीडियोकर हो तो आपको जॉब नहीं लगने वाली है। मैं अपने टाइम की बात करूँ, आई ग्रेजुएटेड इन 2020 एंड आई गॉट 3 interviews. Yes, I just got 3 interviews. One was Amazon जो मैंने क्लियर करके इंटर्नशिप की थी, फिर मुझे media.net का फुल टाइम का इंटरव्यू मिला था which again I got a role from there. And I also gave an interview at Google which went pretty well, but unfortunately उसके बाद कोविड आ गया था जिसके चलते हायरिंग फ्रीज हो गई थी and I did not hear back from them. So I got just 3 interviews and I still remember मेरे बैच में मैं अकेला बंदा था जिसका 30 LPA का प्लेसमेंट लगा था। So I strongly believe we are back in that time जहाँ पे अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हो तो ही वो जो लिमिटेड ओपनिंग अभी आने वाली है यू विल बी एबल टू ग्रैब इट। एंड इफ यू आर समवेयर इन द एवरेज range you will get a good placement, but you might not be able to get a very good placement in these tech companies. So that is why I honestly want to talk about the mistakes I did in my time so that आप वो सेम मिस्टेक्स ना करो। मुझे पता है मुझे 3 इंटरव्यूज मिला था एंड अगर मैं उनमें से एक इंटरव्यू भी मैस अप करता तो शायद आज मैं कहीं और होता। एंड आई जेन्युइनली वांट कि ऐसा कंडीशन ना हो कि सिर्फ 3 इंटरव्यूज मिले। एंड मुझे क्यों मिला था, जब आप मिस्टेक सुनोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई गेट such limited number of opportunities. So before moving ahead in the video, let me tell you about an amazing platform that is going to give you 10 guaranteed placement opportunities. The platform is known as Great Learning Career Academy. Now they offer you various programs, out of which 2 are software development and data analytics. Now these programs can be taken offline in their classroom or they can also be taken in the online format as well. The programs run for a 4 months duration. Once you have completed the program successfully, they have an amazing hiring team which has 2600 plus hiring companies on board. Till now they have placed 6,000 freshers and the people who have taken courses, out of them 95% people have recommended this course so that you can take it again. Now once you have completed the program successfully, you get 10 guaranteed placement opportunities with some amazing top hiring partners like Amazon, Google, Microsoft, Intel, IBM and Flipkart, etc. So a lot of people have joined these programs and have managed to do a successful career transitions from their current role to these particular roles. On their page you can read about these amazing testimonials which are published by the people who have taken the course themselves. So what are you waiting for? There's a link in the description. Make sure to check out Great Learning. So let's talk about the first mistake. The first was मैंने लिख के रखा हुआ है, I did not practice DSA correctly. You might be thinking यार आप तो कैंडिडेट मास्टर हो, आप तो 6 स्टार कोडर थे, आप तो ICPC 3 बार गए थे। Let's understand one thing. If you look at my code forces graph, it took me a lot of time. मतलब मुझे बहुत टाइम लगा था कैंडिडेट मास्टर बनने में एंड आइडियली इतना नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं एक ऐसे कॉलेज से था जहाँ पे सीपी का कल्चर था नहीं, तो मुझे हर चीज़ को सीखना पड़ रहा था। लाइक आई हैड नो वन टू गाइड, तो मुझे हर चीज़ को एक लेवल पे जाने के लिए I had to grill myself, I had to look out for resources, I have to reach out to other people from other college in order to understand everything. तो मैंने एक जो गलती की वो ये था कि मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं लिया। I just used to go and मैं कॉन्टेस्ट देता था, कॉन्टेस्ट के बाद 1-2 सवाल करता था and that's it, that was my thing. So I firmly believe कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, do not dive into CP straight away. Rather than that, do DSA. DSA अच्छे से करो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ लेके। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए तो प्रॉब्ली यू कैन ऑल्सो फॉलो द स्ट्राइवर्स A to Z। वहाँ पे प्रॉपर मैंने स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है। एक स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करो, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने के लिए अच्छे से फॉलो करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब आप सीपी करते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस कर रहे हो, सेम लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपकी जो लर्निंग होती है वो बहुत स्टैग्नेंट होती है या फिर बहुत स्लो होती है। बट अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पाथ से डीएसए सीखोगे तो होगा क्या, आप बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल A to Z पे अगर आप जाते हो शीट पे, तो उसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर आप 6 महीने इन्वेस्ट करते हो यू विल एंड अप लर्निंग सो मेनी एल्गोरिथम्स। तो 7 months 8 months डाउन द लाइन you will have a bunch of algorithms with you and उसके बाद आप CP शुरू कर सकते हो। एंड जब आप उसके बाद CP शुरू करोगे you will see कि आप बहुत easily मैप कर पा रहे हो क्वेश्चंस को एल्गोरिथम्स से। मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले क्वेश्चन ट्राई करता था, बनता नहीं था, फिर मुझे पता चलता था कि ये एल्गोरिथम लगेगा, फिर मैं मैप करता था, सीखता था।
तो द लर्निंग प्रोसेस दैट आई डिड टेक वाज वेरी स्लो. सो फॉर यू आई विल रेकमेंड कि डीएसए अच्छे से करो, फिर जाके सीपी करो. एंड एक और चीज, रिपीटेटिव क्वेश्चंस मत करो. ट्राई मत करो कि 1000 क्वेश्चंस करना है. आई हैव सीन दिस ट्रेंड गोइंग. 1000 क्वेश्चंस करना है, रेज्यूमे में लगाना है. ठीक है, 1000 क्वेश्चंस करना इज नॉट बैड, बट अगर आप सेम क्वेश्चन रिपीटेटिवली कर लो तो गलत है. रादर देन दैट डू न्यू क्वेश्चंस. आप ही सोचो ना, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो एंड अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया, इसका मतलब आपको आता था इसलिए बन गया. आप कुछ सीखे उस चीज से नहीं. अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, दैट इज एन एडवांटेज, बिकॉज आप उस क्वेश्चन से कुछ नया सीखोगे, एक नया एल्गो सीखोगे, एक नया टेक्निक सीखोगे. सो ट्राई टू डू as many as tough questions as possible. Try to do a question which is beyond your level so that you learn something. So पहली गलती तो यही थी कि स्ट्रक्चर्ड पाथ मैंने फॉलो नहीं किया. आज तो इतने रोड मैप्स है कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो. सो गो अक्रॉस एंड डू डीएसए इन अ स्ट्रक्चर्ड पाथ. प्लीज डू दैट, सो दैट आपकी जो ग्रोथ हो वो थोड़ी सी बेटर हो एंड आपको मेरे जितना टाइम नहीं लगे एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंचने में. सेकंड गलती जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने प्रोजेक्ट्स नहीं करा था, मैंने डब नहीं करा. तो मुझे थर्ड ईयर में कोई इंटर्नशिप नहीं मिली. वाई? क्योंकि मेरे पूरे रेज्यूमे में सीपी था. आई अंडरस्टैंड सीपी होना बहुत अच्छा है एंड दैट इज द रीजन कि मैंने 3 इंटरव्यूज दिए एंड मैंने तीनों ही निकाले, बिकॉज आई वाज सो गुड कि आई मेड इट. बट सबके साथ जरूरी नहीं है कि सीपी करके वो इतने अच्छे बन जाएंगे कि लाइक मेरे साथ इतना कॉन्फिडेंट. आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि आज भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी क्वेश्चन दो मैं बना लूँ. इफ यू आर गिविंग मी 60 मिनट्स इन एन इंटरव्यू, आई विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट. क्योंकि मुझे पता है आप ऐसा वर्ल्ड फाइनल वाले क्वेश्चन तो दोगे नहीं, आप वो डीएसए इंटरव्यूज वाले दोगे एंड मैं कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकालूंगा. आई वाज दैट गुड. बट सबके साथ ये चीज़ नहीं होगा. तो व्हाट इफ उस टाइम पे मैं सीपी कर रहा था एंड व्हाट इफ मैं उतना अच्छा नहीं होता लास्ट के टाइम पे. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने प्रोजेक्ट्स किए होते तो मुझे एक थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलती. एंड जो मुझे फाइनल ईयर में सिर्फ 3 इंटरव्यू राउंड्स मिले. मैं जोमेटो में अप्लाई किया, स्विगी में अप्लाई किया, मैं पेटीएम में किया, मैं इतने सारे स्टार्टअप्स में किया. एक जगह शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, एक जगह इंटरव्यू कॉल ले आया. एंड द रीजन वॉज मेरे पूरे रेज्यूमे में एक मतलब प्रोजेक्ट्स थे बहुत बेसिक थे. मतलब वो यूडेमी का कोर्स किया हुआ था, उसी का प्रोजेक्ट था. सुपर बेसिक, कोई भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते मुझे एक भी कॉल नहीं आया. तो इन केस अगर मेरे उनमें से एक भी इंटरव्यूज मतलब खराब गए होते ना, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ का प्रॉपर बैलेंस बना के चलो, क्योंकि यू नेवर नो आपका कौन सा दिन कब खराब जाए एंड उसके चलते आप कब निकल जाओ इंटरव्यू से. यू नेवर नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन अ बैलेंस. आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट डू नॉट डू सीपी, जस्ट डू नॉट डू डेव. इफ यू आर डूइंग लाइक इफ यू आर एन ऑल राउंडर, दैट विल हेल्प यू. डीएसए करो, डीएसए के साथ इधर डेव करो या फिर मशीन लर्निंग करो या फिर कुछ भी करो, बट यू हैव टू हैव एन एडिशनल स्किल. यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन स्किल. प्लीज डू नॉट डू दैट. सो प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाओ. और एक चीज़ जो मैंने गलती की थी, मैंने जो यूडेमी का भी प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैंने डिप्लॉय नहीं किया था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट्स. अगर ऐप बना रहे हो तो प्ले स्टोर पे रखो. अगर वेब कर रहे हो, वेब डेव कर रहे हो, तो उस वेबसाइट को कहीं डिप्लॉय करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर प्रोजेक्ट्स लाइव सो दैट आप वो रेज्यूमे पे दिखा पाओ. यू कैन स्पीक अबाउट दैट इन एन इंटरव्यू. एंड इफ यू डू मोर प्रोजेक्ट्स, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद वेब डेव या फिर ऐप डेव या फिर कोई भी टेक स्किल से, टेक स्टैक से, सो व्हाट विल हैपन इज यू विल बी एबल टू गेट अप more internships and that will eventually help you to get more and more interview calls. Got it? So ये please गलती मत करना. Don't be one dimensional, which I was. I know I made it, but शायद एक गलती होती ना तो शायद I would not have made it. So please do not do it. Third जो मैंने गलती की, I was kind of introvert. Now why do I say I was introvert? या मैं बहुत बोलता था कॉलेज में. When I say introvert, I was like I never participated in a lot of hackathons. I was never a part of all this tech community. Like now I am a part of after graduating, क्योंकि अभी मेरा काम है, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो I have to be a part of. तो I will recommend you कि वो हॉस्टल के 4 दीवारियों के बीच मत रहो, अपने लैपटॉप के अंदर मत रहो. Try to explore. अगर आप CP कर रहे हो, try to explore CP के communities. अगर आप dev कर रहे हो, try to explore Twitter पे जाके, LinkedIn पे जाके कौन सी community क्या है, Twitter पे जा सकते हो. There are wonderful communities of everything that you do. तो बहुत अच्छा टेक कम्युनिटी है ट्विटर पे भी. You can go over there. There are a lot of internship posting जो ट्विटर पे होती रहती है. You can see a lot of people doing a lot of amazing things over there as well. तो don't be an introvert. Don't stay to yourself. A lot of people think that जो करूँगा खुद करूँगा and I'll be good and then I'll make it big. Yeah, you might. But if you are a part of community, कल को हो सकता है नहीं हो आपके साथ. Let's say आपके पास एक जॉब ऑफर है and you're well relaxed. एंड ज्वाइनिंग के 15 दिन पहले आता है कि यू लेड ऑफ. दैट इज वेयर द कम्युनिटी विल जंप इन. टुडे आई कैन से कि मेरी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर मेरा ले ऑफ भी हो जाता है
भगवान ना करे कि ऐसा हो, इनकेस मेरा ले ऑफ भी हो जाता है, मुझे सिर्फ एक लिंक्डइन पोस्ट करना है एंड आई कैन गेट हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू कॉल्स. दैट ओनली हैपेंस इफ यू आर इन द कम्युनिटी. सो प्लीज राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, ट्राई टू बी एक्टिव इन एवरीवेयर, ट्राई टू लाइक कुछ कर रहे हो तो टेल एवरीवन दैट यू आर डूइंग दिस. इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, टेल एवरीवन. क्यों? जब मैं काम करता, लाइक जब मैं सीपी करता था, आई वाज नेवर इनटू दिस थिंग कि मेरा इतना रेटिंग हो गया, मेरा इतना हो गया. आई वाज नेवर इनटू दैट. बट जब मैं यूट्यूब करने लगा, आई मेड श्योर कि मैं हमेशा आई टेल टू द पब्लिक दैट आई एम डूइंग दिस. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड विद समथिंग कि मैं डीपी सीरीज लाने वाला हूँ और ये इंडिया का बिगेस्ट होने वाला है. एंड आई टोल्ड दैट ऑन लिंक्डइन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि ये डीपी सीरीज मैं नेक्स्ट 3 महीने में इंडिया का बिगेस्ट लाऊंगा. एंड मैंने ये करा, इसी वजह से आई वॉज एबल टू कंप्लीट दैट डीपी सीरीज. सेम विद ग्राफ, सेम विद A to Z, सेम विद एवरी अदर प्लेलिस्ट दैट आई एम ब्रिंगिंग. आई गो आउट इन द पब्लिक एंड आई से दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो मुझे एक एडिशनल प्रेशर भी होता है. सो इट काइंड ऑफ हेल्प्स. तो सेम मैं आपके साथ भी कहूंगा कि always be vocal about your achievements, always be vocal about whatever you're doing. Try to be an extrovert. That will definitely help you. जरूरी नहीं है हर चीज बोलो, but it's good to speak about what you do. There's no harm in speaking about the good things that you're doing, right? So ये 3 जो major चीज है, please do it across your college life. That will help you immensely. ठीक है? Almost 2.5 या फिर 3 years हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में. बाहर से तो सबको ये लगता है कि आप भैया का क्या मस्त लाइफ चल रहा है. बट व्हेन आई आस्क माई सेल्फ, व्हेन आई लुक बैक एट दीज ईयर्स, मुझे समझ में आता है कि शायद मैंने अगर प्रोजेक्ट्स किया होता अच्छे से, शायद मैंने अगर डेव किया होता कॉलेज में थोड़ा सा और. तो इनिशियली जब मैं स्टार्ट किया एज अ इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शायद आई वुड हैव बीन मच बेटर. लाइक इनिशियल 6-7 months आई वाज स्ट्रगलिंग एंड देयर इज नो हार्म इन सेइंग दिस. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, ठीक है, you know, like you do mistakes, then only you learn. So I hope आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जा रहे हो. And please don't be one dimensional, which I was. Please do not be. That is what I wanted to convey to you from this video. छोटा सा रैंट था. I hope आपको पसंद आया. अगर मेन चैनल चेकआउट नहीं किया, प्लीज चेकआउट करो टेक यू फॉरवर्ड को. वेबसाइट को भी चेकआउट करो. वी आर पुटिंग सो मच ऑफ कंटेंट. दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड यस, इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं. अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. डू फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड या ऑलवेज बी वोकल अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग. विद दिस आई विल बी रैपिंग अप दिस वीडियो. लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो. टिल देन, बाय. Whenever your heart is broken, don't ever